Artificial intelligence. What is artificial intelligence? Doesn't it look a little bit of confusing when we talk about artificial intelligence? If we divide it in two words, artificial and intelligence. So, what an irony is it? Intelligence can be artificial. We speak about smart watch, smart things. Now, intelligence has also become artificial. So, friends, let us explore this journey of artificial intelligence today. This era of 2024 is for artificial intelligence. Whatever we see in and around is surrounded by artificial intelligence, but we call it that it is invisible. We do not even think that we are surrounded with AI all around. When we speak about Alexa, play this song for me. So, friends, basically, we are using an artificial intelligence technique. When we refer to someone that Bixby, call this, it is artificial intelligence. When we use your smartwatch, it is artificial intelligence. The weather forecast which we see in our mobile, the weather forecast which we see in the newspapers, these all are being done by artificial intelligence. So, what is basically artificial intelligence is? If we see to it, it is the ability of the machine to learn patterns and make prediction. So by artificial intelligence, we means that we are trying to make a machine intelligent. And how we are trying to make the machine intelligent? By giving it those algorithms by which machine can learn and do the predictions. So artificial intelligence is a field that combine computer science and robust data sets to enable problem solving. What is artificial intelligence? It is a field which is helping computer science to predict something, to make the problem easier for predicting the things. Now you can use your idea that where you have seen artificial intelligence in daily life. Just pause for a moment and think of a simple idea where you have used artificial intelligence, or where someone has used artificial intelligence and you are also using it. Think of an example for your own being, that where you have used artificial intelligence. Now let us divide artificial intelligence into two categories. One is artificial intelligence and second is augmented intelligence. So what is the difference between AI and augmented intelligence? Augmented intelligence is something we say that which is practically impossible for a human being to do. That is augmented intelligence. Nowadays you must be hearing about the word augmented reality, virtual reality. Being at one place, wearing an AR VR device, and you feel as if you are in space. That is augmented intelligence. Things which are being done by the machine, which is practically impossible for human being. Whereas artificial intelligence is where the machine is making the task easier and it is trying to behave like a human being. How a machine is behaving like a human being? Now a question arises, can AI diagnose cancer? We can say yes, with artificial intelligence we are able to diagnose it, but actually we are not able to diagnose. The machine can only predict. Diagnosis has to be done by the human being. So we say that artificial intelligence is going to displace the human beings, it is not going to replace. तो और इसके तीन टर्म्स पढ़ते हैं. Let us study the three terms which are very important for artificial intelligence. To know artificial intelligence, what is artificial intelligence, let us see the three terms of AI. Now these three terms of AI are, if we speak of the three terms of AI are, one is artificial intelligence, second is machine learning, and third is डीप लर्निंग. इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है, हम बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोटे काम करने के लिए है. रूल बेस्ड एल्गोरिथम हमने उन्हें बताई, इफ बट कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करे, ऐसा होगा तो ऐसा करे, ऐसा होगा तो ऐसा करे. तो जहाँ रूल बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं, है ना, छोटी छोटी एल्गोरिथम्स बनाई गई, वहां पर एआई का काम हुआ. मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में और एआई में क्या डिफरेंस हुआ? मशीन लर्निंग में हमने
थोड़ा ज़्यादा डेटा दिया मशीन को और उसे कहा कि आप इस डेटा से फीचर को एक्सट्रैक्ट करके बताओ कि ये क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसे एक एनिमल दिखाया, उसने एनिमल के फीचर्स देखे कि इसके ऐसे कान हैं, ऐसी नाक है, तो ये कैट होगा। दूसरा एनिमल दिखाया, उसने उसके फीचर्स देखे तो ये डॉग होगा। और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में हमने उसे क्या बताया था कि अगर ऐसा है तो कैट है। हमने पहले ही उसे रूल डिफ़ाइन कर दिए थे। मशीन लर्निंग में हमने फीचर एक्सट्रैक्शन एल्गोरिथम्स पे काम करा। और तीसरा टर्मिनोलॉजी डेटा सॉरी डीप लर्निंग। इन डीप लर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज बीइंग गिवन टू द मशीन फॉर ट्रेनिंग। तो इन तीनों टर्म्स में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है और तीनों टर्म्स आपस में इंटीग्रेटेड है। कैसे इंटीग्रेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, मशीन लर्निंग is a subset of AI and deep learning is a subset of machine learning। जब एआई की एक स्पेसिफिक फील्ड को चुना गया, जब उसको कुछ पर्टिकुलर डेटा दिया गया तो उसे हमने बोला मशीन लर्निंग। जब और ज़्यादा स्पेसिफिक करा गया, और ज़्यादा पर्टिकुलर और ज़्यादा डेटा दिया गया तो उसे बोला डीप लर्निंग। तो इन तीनों टर्म्स को हम इस पूरे कोर्स में और ज़्यादा ध्यान से देखेंगे आने वाले वीडियोस में। नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस बहुत तरह से कर सकते हैं, है ना। वी कैन डू वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शंस, वी कैन डू वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शंस। जैसे कि हमने कहा कि ह्यूमन लैंग्वेज, हमने कहा ह्यूमन लैंग्वेज का यूज़ करके हम प्रेडिक्शंस करेंगे। तो ह्यूमन लैंग्वेज का यूज़ करके कैसे प्रेडिक्शंस करी जाती है? जैसे ऑनलाइन चैटबॉट्स। अब चैटबॉट पे कोई भी प्रोग्राम बनाया गया तो वो कुछ चीज़ आपको बता सकता है कि अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा। चैटबॉट कैन गिव आंसर्स टू स्पेसिफिक थिंग्स। इट कैनॉट गिव मल्टीपल आंसर्स, इट कैन ओनली गिव स्पेसिफिक आंसर्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ह्यूमन लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसमें चैटबॉट का एग्जांपल आया। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विजन रिकॉग्निशन हो सकता है। विजन रिकॉग्निशन मतलब फोटो को देख के रिकॉग्नाइज करना, किसी चीज को देख के रिकॉग्नाइज करना। तो इमेज प्रोसेसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएगी, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स को देख के कार अपने आप रुक जाए, है ना, विजन रिकॉग्निशन। फिर फ्रॉड डिटेक्शंस की प्रेडिक्शंस, जिसमें हमने उसे एक डेटा दिया और वो फ्रॉड डिटेक्शन कर सकता है, या कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से प्रीवियस डेटा को उसने देखा कि आज तक उसने कभी भी बैंक से इतने रुपए नहीं निकाले थे, अचानक इतने रुपए क्यों निकाल रहा है। तो यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो सकता है। ये वीडियो बेसिकली क्या है, आपको ये बताने के लिए है कि कितनी अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, उसके क्या एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। अब इस सब चीज़ के पीछे जो मेन चीज़ छुपी है वो क्या होती है? डेटा। डेटा के बिना कुछ नहीं हो सकता, डेटा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके डेटा पे निर्भर करता है। सो डेटा इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जिसमें आज हम इस वीडियो में 2 टाइप के डेटा की बात करेंगे। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इस दोनों डेटा को डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है एआई समझने के लिए। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जिसमें इनपुट के साथ आउटपुट मैच होता है। आपको एक टेबल फॉर्म में, एक क्वांटिटी फॉर्म में डेटा मिलेगा, जिसमें इनपुट का भी टेबल होगा, आउटपुट का भी टेबल होगा, कि ये सारी फील्ड्स अगर ट्रू हैं तो आउटपुट ये होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमने इमेजेस लगाई, हमने बताया कि ये इमेज अगर है तो आउटपुट में डॉग है, ये इमेज अगर है तो आउटपुट में कैट है। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर्ड डेटा। या वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमने कहा विंड की स्पीड इतनी है, सनलाइट इतनी है, ह्यूमिडिटी इतनी है। तो वेदर फोरकास्टिंग में आउटपुट मिला कि रेन होगी या नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन कितना परसेंटेज है। दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा इज नोन एज अ क्वांटिटेटिव डेटा, जिसमें किसी क्वांटिटी को हम डील कर रहे हो। जबकि जो दूसरा डेटा है, दैट इज विच कैनॉट बी एनालाइज्ड विद एनी कन्वेंशनल टूल्स, इट इज नोन एज एन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे कि मेडिकल के रिकॉर्ड्स, लिरिक्स, विच इज नोन एज अ क्वालिटेटिव डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में जो मेन डिफरेंस है, स्ट्रक्चर्ड डेटा में इनपुट आउटपुट की मैपिंग होती है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में इनपुट आउटपुट की मैपिंग नहीं होती। तो आज के वीडियो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बीच में डिफरेंस समझ में आ सके। स्ट्रक्चर्ड डेटा बहुत आसान होता है एनालाइज करना,
फैक्चुअल होता है, फैक्ट्स के साथ होता है, उसका एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से आप उसे रिट्रीव कर सकते हो, यू स्टोर इट एनी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे एयरलाइन रिजर्वेशंस, इन्वेंट्री सिस्टम्स, these all are examples of structured data. But when we talk about unstructured data, it does not have any predefined format. उसको बहुत ज़्यादा स्टोरेज की स्पेस चाहिए, उसके लिए हम नो एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, जैसे सैटेलाइट की इमेजेस हो गई, हमें नहीं पता उसमें से क्या क्या रिट्रीव हो सकता है, सेंसस का डेटा हो गया, सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई. नाउ व्हाई दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज gave birth to machine learning and then to deep learning, because nowadays large amount of this unstructured data is there. बहुत सारी सोशल मीडिया की पोस्ट्स आ रही हैं, है ना? क्यों ह्यूमन लैंग्वेज प्रोसेसिंग इतनी मुश्किल है? बिकॉज द सेम सेंटेंस कैन बी स्पोकन इन डिफरेंट वर्ड्स, उसकी अलग अलग मीनिंग्स निकल सकते हैं, इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं. तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक डेटा या डार्क डेटा, ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. इसके प्रोडक्शन की वजह से ही हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को इतना ज़्यादा वेटेज मिल रहा है. एंड it is difficult to analyze this data. For analyzing this data, a large amount of concept is required. So analyzing this unstructured data is very difficult, and the solution for this is machine learning and deep learning. So this artificial intelligence has given birth to machine learning and deep learning because of this unstructured data. Now learning can also be divided into different things, which we will see in the next video कि learning को कैसे divide करा गया, supervised learning क्या है, unsupervised learning क्या है. So friends, keep on watching these videos and explore more and more about artificial intelligence. Thank you.